Hello students, this is the revision video for chapter 2 of your geography book, that is globes, latitudes and longitudes. In this chapter we will quickly revise the concept relating to globes, the use of globes and the latitudes, what are latitudes, what are longitudes, what are the various heat zones of earth, and why and how we have standardized time, and what is the standard time for India and what is the need for that. So to start with globes, here is the picture of the globe on your screen right now. If I put it in definition, globe is a true model दैट टू इन मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. बिल्कुल अर्थ का एग्जैक्ट कॉपी है, एक मॉडल है, मिनिएचर है, यानी उसको अर्थ को बिल्कुल हमने छोटा करके दिखाया है, राइट उसके अंदर. और ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स. इसकी साइज़ और टाइप्स जो है बहुत ही हो सकते हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं विच कांट बी कैरी ईजिली, बट दे कैन बी एज स्मॉल एज दैट दे कैन बी पुट इन टू योर पॉकेट. इतने छोटे भी होते हैं कि आप उसको अपनी बिल्कुल अपने टेबल पे रख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है. और सिमिलरली बिल्कुल अर्थ के एक्सेस को शो करने के लिए ग्लोब को फिक्स नहीं रखा होता. जस्ट टू टेल द प्रोसेस ऑफ रोटेशन, ग्लोब्स आर ऑल्सो लाइक इन द सेम वे दे आर प्लेस्ड कि दे ऑल्सो रोटेट. ओके, और ग्लोब के ऊपर ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. यू कैन हैव द exact view of what our earth looks like, right? And इसके अंदर अगर हम मैं इसको कैटेगराइज करूं तो आपको एक्सिस भी पता लगेगा. आप दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी देख सकते हैं. जितनी इमेजिनरी लाइंस हमने ग्लोब के मतलब रिप्रेजेंट कर सकती हैं, आपको सारे लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स सब इसमें देखने को मिलेंगे. तो एग्जैक्टली आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है व्हाट एग्जैक्टली आवर अर्थ लुक लाइक्स एंड हाउ वी हैव डिवाइडेड आवर अर्थ विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइन्स टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, टू understand the concepts very clearly. So this was about the globes, and as you can see that globe is divided into many vertical and horizontal lines. We will go in detail and study or revise what these horizontal and vertical lines are about. In this picture you can see there are some vertical lines and there are some horizontal lines which we have named as latitude and longitudes. Okay, so let's begin with latitudes. In this picture you can see, look, these all are latitudes. Okay, and these lines are also known as parallels. These lines are also known as parallel. These are the imaginary kind of circular lines, right? These are imaginary circular lines which are running throughout the earth, and the very line which represent the zero at the 0 degree, that is the equator. That is the equator. Above equator all these lines would be known as northern latitudes, and all the lines beyond the equator towards the south pole will be called as southern latitudes. Okay, for northern latitudes we put letter N, and for southern latitudes we put letter S besides them. So the center is equator, which is at 0 degree. So here you need to memorize that the other name for latitude is parallels, and they run in the direction east to west direction. They run in an east to west direction and measure distance from north or south from the equator. Later on, अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे लोकेशन में हेल्प करता है. ओके, पैरेलल्स आर टू वन अनदर एंड नेवर मीट. दे जितने भी आपके लैटिट्यूड्स हैं, दे नेवर मीट ईच अदर. वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगे और क्रॉस करते हैं ये प्राइम मेरिडियन को. प्राइम मेरिडियन अभी आप जब हम लॉन्जिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा प्राइम मेरिडियन क्या है. अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, सपोज दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन, रिलेट कीजिए ये प्राइम मेरिडियन है, और जब ये लैटिट्यूड्स जो हैं इस तरह से लैटिट्यूड्स जो रन कर रहे हैं वो सभी प्राइम मेरिडियन को राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पर कट करते हैं. and latitudes lie in the plane that crosses the Earth's axis at right angles.
और ये जैसे जैसे आप पोल्स की टुवर्ड जाएंगे ना, आप देखेंगे ये सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं. प्लीज सी 90 डिग्री 80 डिग्री पे जैसे 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 इक्वेटर से दूर हो रहे हैं उतना ही स्मॉल सर्कल होता जा रहा है. तो दिस वॉज अबाउट लैटिट्यूड्स. वट यू नीड टू लर्न, you need to learn the other name for the latitudes. You can say these are the parallels. और आपको मेन लैटिट्यूड्स भी मेमोराइज करने हैं कि इम्पॉर्टेंट जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनकी डिग्री और उनके नेम आपको आने चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पिक्चर. लेट्स क्विकली रिवाइज अबाउट दैट. एट द 0 डिग्री the parallel of latitude is called equator, which divides the earth into two hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere. तो बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेटर को समझना और उसकी डिग्री दैट इज 0 डिग्री. ओके, अब हम चलते हैं अपर सदर्न पार्ट्स में हम चल रहे हैं, सॉरी अपर नदर्न पार्ट्स में हम चल रहे हैं. और आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ में दिखेगा. 20 आई थिंक इन दिस पिक्चर इट इज़ रिटन एस बट इट शुड बी 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको जो लैटिट्यूड इक्वेटर के बाद इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी हम समझेंगे जब हम हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी ये समझिए कि इक्वेटर जो सेंटर है जो कि अर्थ को नदर्न और सदर्न दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. आफ्टर दैट 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ लोकेटेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर उतना ही डिस्टेंस में साउथ में चलती हूँ तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिखाई देगा दैट इज़ 23.5 डिग्री साउथ. ओके, मूविंग अहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यू विल सी एट 66.5 डिग्री नॉर्थ इट इज़ आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल इज देयर. और इसी का एग्जैक्टली अपोजिट अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में देखूँ, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 66.5 डिग्री साउथ पे हमारा लोकेटेड है. डोंट just ignore this thing, this is wrong over here, this should be south, not north नहीं होना चाहिए, this should be south. और यहाँ पर ये north था, it should be north. ओके, सो डोंट कंफ्यूज, इट इज़ वेरी सिंपल. जो नदर्न हेमिस्फीयर में उनके आगे एन लगेगा और जो सदर्न हेमिस्फीयर में उनके आगे एस लगेगा. सो व्हाट वी वर लर्निंग हेयर वाज कि 66.5 डिग्री साउथ पे आपका एंटार्क्टिक सर्कल है. और ऊपर जब हम चले जाते हैं 90 डिग्री टॉप जो है दैट इज़ नॉर्थ पोल और 90 डिग्री डाउन साउथवर्ड इज़ साउथ पोल. सो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है लैटिट्यूड, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये आपको हेल्प करेंगे समझने में. क्या चीज़ समझने में आपको हेल्प करेंगे, ये आपको समझने में हेल्प करेंगे द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. हीट जोन्स जो हैं वो आपको डिफाइन करते हैं. कुछ हमने कैटेगराइज हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ का एक डिफाइन टाइप का एटमॉस्फेयर है, एक डिफाइन टाइप का क्लाइमेट है और उनको हमने हीट जोन्स में कैटेगराइज किया है. टू टेल यू बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ हीट जोन्स. वी नेम देम एज टॉरेट जोन, देन टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. ओके, रिमेंबर ये हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों किए हैं. इक्वेटर से लेकर आपके एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ. ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड टॉरेट जोन. इसको टॉरेट जोन क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज द एरिया विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट. ओके, एंड all the latitudes between tropic of cancer and tropic of capricorn at least once in a year they had midday sun is exactly overhead और जिसकी वजह से इसको डायरेक्ट रेस मिलती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है क्लाइमेट है एक्सट्रीम में है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है. ओके, और अब हम बढ़ते हैं टेम्परेट जोन की बात. द एरिया सी नॉर्दर्न जोन और सदर्न हेमिस्फीयर को जरा ध्यान में रखिएगा. द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द फ्रिजिड जोन in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere the area between tropic of capricorn and your this antarctic circle, right? The area in the southern hemisphere, the area between tropic of cancer and arctic circle. They have not written arctic circle over here. Let me write it out for you. This is arctic circle and this is Antarctic circle. So
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, द एरिया विच इज़ देयर इट इज़ नोन एज द टेम्परेट जोन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, ओवरहेड कभी नहीं आता। द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल, जैसे भी हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ना टुवर्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उतना ही जो सनलाइट का एंगल जो है, सन रेज का जो एंगल है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो ये जो एरिया है, बिकॉज ऑफ द नॉट रिसीविंग द डायरेक्ट सनलाइट, overhead sunlight, they are having moderate temperature. That's why they are called temperate zones. Now let's move ahead. Let's now talk about the region between the North Pole and Arctic Circle and the area between South Pole and the Antarctic Circle. अब ये जो area है, this area is extremely cold because the sun rays are reaching here in slanting ways and that's why they are providing less heat, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ठंडा रहता है और इसी वजह से इनको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर व्हाट वी हैव लर्नड है ओवर हेयर, while learning about the latitude we understand what is the meaning of latitude, क्या उनके बेसिक क्वालिटीज़ हैं। आपसे पूछ सकता है द पैरेलल, मतलब पैरेलल बताइए इम्पॉर्टेंट विच इज़ लोकेटेड एट 0 डिग्री, आपसे पूछा जा सकता है नेम द latitude which is between the important latitude which is placed at 66.5 degree north. So these are the things which you need to memorize over here, they are very important. तो latitude को पढ़ते हुए हमने understand किया latitudes की quality, उनके features के बारे में, then we have understood the important latitudes, और फिर because of why these latitudes are so important, because we have categorized or divided the this heat zones of the earth with the help of these latitudes. Now let's move to longitudes. Longitudes are also known as the meridian. आप देख रहे हैं ये, they are running from north to south. Please just see that these lines are running from north to south. Okay, north to south ये lines जो है वो run कर रही हैं। अब इसमें जो 0 डिग्री है, मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये जो 0 डिग्री पे उसको हमने प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। एंड दिस प्राइम मेरिडियन इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, और इसी से हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड जो है वो काउंट करते हैं। एंड दिस मेरिडियन, दिस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड है। आपको जगह का नाम पता होना चाहिए, आपको प्राइम मेरिडियन की डिग्री पता होनी चाहिए, द इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। यही वो मेरिडियन है जो कि अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके नाउ, और ये क्रॉस करता है इक्वेटर को 80 डिग्री पे। अब आप जितने भी यहाँ पर लॉन्जिट्यूड्स देखेंगे, रिमेंबर दैट दे आर ऑल इक्वल इन साइज, दे आर ऑल इक्वल इन साइज एंड आर हाफ ऑफ द ग्रेटर सर्कल, क्योंकि जो हमें दिख रहे हैं वो तो हमें विजिबल हैं, जो अर्थ का पार्ट हमें विजिबल नहीं है वहाँ पर भी ये रन कर रहे हैं, तो दीज आर हाफ ऑफ ग्रेट सर्कल्स। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि टुवर्ड द नॉर्दर्न एंड द सदर्न पार्ट दे ऑल टेंड टू मीट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ओके राइट, और अभी हमने वी हैव कवर्ड दिस थिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किसी भी जगह की लोकेशन को, राइट, किसी भी जगह को फाइंड आउट करने में क्या रोल प्ले करते हैं लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। एक तरह का ग्रिड फॉर्म कर लेते हैं। ग्रिड क्या है? ग्रिड यू कैन से वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर, वो ग्रिड है। द जियोग्राफिकल ग्रिड सिस्टम वॉज क्रिएटेड टू लोकेट ऑल प्लेसेज ऑन अर्थ। इट यूजेज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ। कोई भी प्लेस आपको पता करनी है कहाँ पर है, वट यू विल डू, यू विल नोट डाउन ऑन विच लैटिट्यूड इट इज as well as on which longitude it is, and taking that location's address whatever come, that will exactly tell you what is the position or location of that earth. I hope I have made myself clear कि हम कैसे जो है इसको किसी भी प्लेस को हम लोकेट करते हैं। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए जो ग्रिड होता है ना,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप मान लीजिए मुझे असम देखना है, असम की कोई जगह है, असम में कोई जगह अगर मुझे दावरी देखना है तो उसके लिए मुझे पता है, मैं देखूंगी कौन से लैटिट्यूड पर है और कौन से लॉन्जिट्यूड पे है, और उस कॉम्बिनेशन को मैं लिख दूंगी, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, so why this longitudes, yeah, how we find or how we locate a place on the earth? We locate a place on the earth by the combination on that particular latitude or longitude it is placed on. जिस भी latitude और longitude पे वो है, उसके एड्रेस से हम उस जगह को जो है locate कर लेते हैं. Now let's now understand what is the need of standard time. Standard time की क्या need है, इंडिया का standard time क्या है और क्यों है. Let's read this slide. The time of a place depend on the longitude that passes through it. आप जिस जगह पे हैं, जिस longitude पे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम उसके अकॉर्डिंगली निकलेगा. Therefore, the standard time for each country is usually taken as the time of the central meridian that passes through it. देखो, इंडिया हैज़ अ वास्ट लॉन्जिट्यूशनल एक्सटेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जब मैंने आपको डाउट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के बीच में वो लोकेटेड है. और अगर कोई बंदा गुजरात में है, इफ़ द पर्सन इज स्टैंडिंग इन गुजरात, दैट इज़ ही वॉज देयर समवेयर इन 68 डिग्री लॉन्जिट्यूड. एंड इफ समबडी एल्स, इफ से पर्सन बी इज स्टैंडिंग इन असम, तो that he must be standing at somewhere 97 degree longitudes. So there is difference. और हर एक डिग्री के साथ, हर एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता रहता है, राइट. और क्योंकि टोटल जो है वो स्फेरिकल की वजह से हम इसको 360 डिग्री लेते हैं ना, 360 डिग्री को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं. तो फिर वो 24 आवर्स से हमने जो इक्वेशन निकाली थी, तो हर डिग्री के अंदर जो 1 डिग्री होगा ना, हर 1 डिग्री का अमाउंट आएगा 4 मिनट. ठीक है, तो अब लगा लीजिए इंडिया के अंदर 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री का डिफरेंस है. तो जो सेंटर है, जो सेंटर लॉन्जिट्यूड आएगा इंडिया का, उसको हमने कन्वीनियंस के लिए हमने उसको जो है कंसिडर कर लिया कि वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है. यानी कि उस जगह के ईस्ट और वेस्ट जितने भी लॉन्जिट्यूड्स हैं वो सब उसी को फॉलो करेंगे, ताकि पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहे टाइम की. वो यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं होगी, देन देयर विल बी वेरी कोरस. वी कांट डिसाइड द टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स एंड दिस फ्लाइट्स, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. तो इस चीज़ को, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस कंट्री का लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंसेस जितने ज़्यादा होते हैं उसको उतने ही टाइम जोन्स दिए जाते हैं. लाइक हमारा जो सेंट्रल टाइम है, जो हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमने लोकेट किया है 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स पे, जो कि कहाँ पड़ता है, इट पासेस लाइक मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, जो कि इलाहाबाद के अंदर बता रहे हैं, वहाँ पर ये जो है आपका पड़ता है. तो अब आपको डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नीड टू हैव दैट स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया. इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं क्योंकि अगर हम गुजरात और असम का लॉन्जिट्यूशनल डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल कम अप टू 1 hour and 45 minutes अप्रॉक्सीमेटली. आई थिंक 1 hour and 56 minutes अप्रॉक्सीमेटली. तो उसको 2 घंटे का ये जो फ़र्क पड़ेगा, उससे पूरा फ्लाइट्स का, रेलवे का सारा ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. किसी का भी न्यूज़ टेलीकास्ट का, एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड. तो उसको स्टैंडर्ड रखने के लिए जो सेंटर से जा रहा है, जो हमारा 82.5 डिग्री है, उसको हमने जो है स्टैंडर्डाइज इंडियन टाइम ले लिया है. और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, राइट. और जो हम लोग हैं और जो ग्रीनविच है, वहाँ के टाइम पीरियड के अंदर 5 hours and 30 minutes हम लोग अहेड हैं. GMT, ग्रीन मेरिडियन टाइम से हम लोग 5 hours and 30 minutes अहेड है, राइट. तो हमारे बीच के अंदर जो डिफरेंस होगा वो कोई 5.5 घंटों का डिफरेंस होगा, राइट. So this is what you need to cover in this particular chapter. Do read the NCERT book thoroughly, because your exam is coming in an objective type, so you can't skip any single line. Just give thorough reading of the chapters. That's all for this video. Bye bye.